With respect to my all the dear students, they have know about the integration by the WhatsApp message and inbox message. They request me to tell about the integration. It is the large chapters that occupy a large space in your career. Therefore, it is a must more studied. You can deeply study in about the integration. Okay, those students who know about the differentiation, they are easily can be understand what is the integration. Okay, it is used and also my all my scientists, mathematician, they use inseparable process it, and all types of the uh, Brahman that use to religions. ओके, जैसे पहले जो महर्षि हुआ करते थे वो सब इसका कुंडली बनाने में उपयोग करते, ग्रह नक्षत्र को का अध्ययन करने में उपयोग करते थे. एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं दे यूज इट. ओके, यू कैन से इट. तो you have need to know about what is the differentiation. If you know it, no problem to understand what is the integration. I now explain you that if you are going to differentiate any function, you find out the differential coefficient. Okay, but with the help of the differential coefficient, when we are going to find out the function, that is known the integration, then we can show that it is the just reverse process of the differentiation. By differentiating, we are going to find out the differential constant. Okay, but in this process we are going to find the function that differentiate. ओके, तो हम कह सकते हैं समाकलन अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है. अवकलन में अवकल गुणांक निकाले जाते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलता है, और इंटीग्रेशन में हम लोग उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के हेल्प से क्या बनाते हैं बेटा, फंक्शन को ऑब्टेन करते हैं. ओके, तो it is defined that if fx be any differential coefficient, then fx is any differential coefficient, then इंटीग्रल ओवर, ऐसे इसकी साइन रिप्रेजेंट की जाते हैं, ऐसे इंटीग्रल ओवर dx is known as fx plus c. It is known as integration constant. इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि when we are going to differentiate the function, the constant term is 0. For example, x square plus 5 going to differentiate with respect to x, we observe that 2x plus 0, that is 2x. So we can say the constant terms will be 0 when we are going to differentiate. Therefore, for this number we are added here. Okay, हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, दैट इज नोन है इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, तो ये डिफिनीशन है बेटा, ए जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, और एक फंडामेंटल फॉर्मूला. वी नो दैट dy dx of s to the power n plus 1 equal to n plus 1 s की power n. Know about it, na? Okay, now integrating both sides. हमने क्या किया है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया है. इंटीग्रेट का साइन क्या है बेटा, वहां dy dx, यहाँ dx, तो इंटीग्रल ओवर dy dx ऑफ s की पावर n प्लस 1 dx n प्लस 1 f to the power n dx. Okay, both are the reversible process, they cancel to each other, n plus, that is n plus 1 common,
कांस्टेंट है, और इधर s की पावर n dx। ओके, तो वी कैन से x टू द पावर n dx इक्वल टू s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ओके, और यहाँ एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड कर देते। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब जरा देखो अपोजिट है कि नहीं है, देखिएगा। जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो ये बाहर आ जाता है, ये अपान में चला जाता है, यहाँ एक कम हो जाता है, यहाँ एक बढ़ जाता है। देखिएगा ये इंटू में आ गया, और यहाँ डिवीजन में, इंटू का रिवर्स डिवीजन है, उल्टा डिवीजन है, और यहाँ प्लस का माइनस होता है। यहाँ एक नंबर कम हो गया और यहाँ एक नंबर ज्यादा हो गया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंस है। बट दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल एंड नॉट इक्वल टू 0 and not equal to -1, sorry. If you are replace x -1 plus 1 that gives us 0, तो 0 डिफाइंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा, अनडिफाइंड प्रोसेस हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर दोज केस व्हेन n ए कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू -1। n कांस्टेंट होना चाहिए और नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी आपने किया था x² dx, तो क्या करोगे बेटा, अगर हम फॉर्मूला लगा दें यहाँ तो पावर ऐड हो जाता है ना 2 + 1, और डिवाइड हो जाता है, कांस्टेंट लग जाता है, तो क्या मिल गया। आपको लोग सोच रहे होंगे कि यार न्यूमेरिकल मेरा सही कि नहीं, तो आप इसे डिफरेंशिएट करके देख लो। Differentiating this, you have obtained 3x² by 3 और कांस्टेंट है 0, that is x²। यानी जो हमने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, वो सही। तो यू कैन आल्सो चेक योर आंसर। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, है नहीं। अब सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ये था बेटा फंडामेंटल फॉर्मूला। हाँ, इंटीग्रेशन 2-3 फॉर्मूले हैं, देख लो। इंटीग्रेशन में पहला है सिर्फ एडिशन है, f1x प्लस f2x dx ऐसे लिखा है, तो दैट कैन बी राइट। ये प्लस माइनस होगा तभी माइनस लग जाएगा, प्लस होगा तो प्लस लग जाएगा। ओके, सेकंड है fx dx, ये कांस्टेंट है बेटा, तो ये बाहर आ जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी सेम एज है, दैट इज इन डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन आर 2 टाइप्स, इंटीग्रेशन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट is indefinite integration, definite integration, or that is definite integration। definite integration दो टाइप्स होता है, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। इसमें क्या होता है, ये बाउंड नहीं होते हैं, टोटली ओपन होता है, जहां तक चाहो वहां तक डिफरेंशिएट करो। इसमें एरिया बाउंडेड हो जाती है, इसमें हम लोग बाउंडेड कर देते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन के कई प्रोसेस है बेटा। सैंपल इंटीग्रेशन, सैंपल इंटीग्रेशन, सैंपल इंटीग्रेशन में भी हमने करोगे x टू द पावर n dx, s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस 3। सेकेंड बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा। सेकंड है बाई पार्ट, फिर है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, और नेक्स्ट है बाय
सम स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो सिंपल इंटीग्रेशन ओनली द फार्मूला यूज इन अ सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज पुट कर देते हैं जिससे मेरा जो इनग्रैंड है या कहे इंटीग्रल पार्ट है वो छोटा हो जाता है। और बाय पार्ट में हम लोग ज्यादातर मल्टीपल फॉर्मूले लगाते हैं, यूवी जिसे कहते हैं हम लोग, इसमें मल्टीपल दिया होता है तो हम बाई पार्ट लगाते हैं। और बाई पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन द एनी फ्रैक्शनल या रेशनल एक्सप्रेशन आर गिवन इन अ डिफरेंट टाइप दैट denominator is more than the power the denominator more than the numerator, then we express the given equation in terms of the given fraction कह लो in a simple form of the fraction, and then we are going to integrate that। and some standard फार्मूले में हम लोग बेटा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होंगे जिसको हम यूज करके इनको हम सॉल्व करते हैं। इंडेफिनिट में लिमिट दी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, बाउंड करेगा और फिर उसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके थ्रू एरिया भी निकाल सकते हो, किसी की एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द स्फीयर, जिसकी मर्जी हो उसकी, ऑल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फ्रस्टम, you can say any types of the 2-dimensional 3-dimensional figure can be area and volume can be defined with the help of the definite integration। My first topic the indefinite integration that used by sample integration। So some formulae exist here, note it, see here what is the formula। Second, we know that second formula dy dx of e to the power x is e to the power x, we know it, integrate both sides, dy dx e to the power x dx, integral over e to the power x dx, e to the power x is cancel to the e to the power x और दैट ई टू द पावर एक्स। तो हमने देखा अगर डिफ्रेंशिएट करो तब ई टू द पावर एक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इंटीग्रेट करो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड है डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई है, दैट इज 1/x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डिवाइड डी एक्स ऑफ log ex इंटीग्रल over 1/x dx, डिफ्रेंशिएट इंटू dx ड्रॉप हो गया है तो log x आ गया और दैट इज 1/x dx। तो वी कैन से 1/x dx इक्वल टू log x प्लस c, ये थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ है बेटा डिवाइड dx ऑफ log ax 1/x log ae, हम डायरेक्ट लिखते हैं इंटीग्रल ओवर 1/x dx इक्वल टू log a x अपॉन log ae। अप्रूव नहीं कराते हैं, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ है बेटा डिवाइड dx ऑफ a टू द पावर x, क्या होता डिवाइड dx ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x बेस ई ए, तो इंटीग्रल a बाई एक्स क्या हो जाएगा a बाई एक्स अपॉन log ई ए। 6 डिवाइड dx ऑफ sin x, that is sin x, that is cos x
तो वी कैन से divide as of cos x dx equal to sin x, ये फॉर्मूला है. दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला. दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला. वी आल्सो नो द divide as of cos x minus sin x, तो इंटीग्रल ओवर sin x dx इक्वल टू प्लस से ऐड कर लीजिएगा माइनस cos x प्लस से. वी आल्सो नो दैट cos x dx लिख चुके हैं sec स्क्वायर dx. किसको डिफरेंशिएट को तो sec स्क्वायर dx आता है. डिवाइड ऑफ tan x गिव्स अस sec स्क्वायर x, तो हम इसे कहेंगे tan x प्लस c. कोसेक स्क्वायर x किसको डिफरेंशिएट करने से कोसेक स्क्वायर आता है माइनस कॉट x. तो ये सब फॉर्मूले थे जो आपको लर्न करने हैं, और कुछ फॉर्मूले और है जो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा और इन्हें लर्न कर लेना है बेटा. फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वी सॉल्व द मेनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम. डिवाइड x ऑफ 1 minus x square, that gives us sin inverse x plus c, or minus cos inverse x plus c. सेकेंड 10th है ये, फर्स्ट ईयर. फर्स्ट डिवाइड x of 1 plus x square, that gives us tan inverse x plus c, और माइनस cot इनवर्स x प्लस c. हुआ डिवाइड x ऑफ 1 x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, दैट गिव्स sec इनवर्स x प्लस c, और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c. तो इतने फॉर्मूले आप लर्न कर लो. On next video we discuss about the some application of this formula, and I also solve the addition and NCERT of the integration portion. But in other video we are discuss only the main questions, but in this video we hold the addition and NCERT that can solve. You have need to study. Okay, that's all.